same diet every day and very क्या बोलते हैं उसको, very hardcore diet, मतलब it is very difficult to follow. Okay, so then I told her that she should have something, and उसका सबसे बड़ा problem ये था, she used to have sleepless nights. उसको नींद ही नहीं आती थी. So she would sleep around 2 o'clock, wake up early morning at 5:30, 6 o'clock. Okay, so you can just imagine a person's life, the quality of life the person is leading for last 1.5 to 2 years. मतलब यही वो follow कर रही है, and she is happy कि उसका insulin कम हो गया है, but she does not get good sleep. वो खाना चाहती है खाना, लेकिन खा नहीं सकती है. ओके, एंड वो तो स्ट्रेस फैक्टर अलग है ही है कि अर्ली मॉर्निंग उसका फास्टिंग बढ़ रहा है. शी इज टेकिंग डायबिटीज के मेडिसिन, और मतलब सारे जो डॉक्टर्स हैं उस लोकल एरिया में, शी हैव विजिटेड देम एंड स्टिल हर मॉर्निंग शुगर लेवल्स आर नॉट कमिंग डाउन. व्हाट कैन बी द रीजन? यस, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स बताओ, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? Very simple thing I made her to change, and her sugar levels are now gradually dropping. Okay, gradually they are dropping. What can be the reason for this? Yes, what can be the reason? Anyone tell? Kavita? No one knows? हेलो, कोई भी बता दो. एनीथिंग यू विश टू टेल और यू नो अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू. यस, व्हाट कैन बी द रीजन? See, normally what happens, understand this. Normally what happens when you are suppose you are playing outside, okay, on ground, and you are very happy playing outside. You are not a diseased person, you do not have any kind of disease, and you are very happy playing with your friends. Initially what happens, you play for 2 hours, you play for 3 hours, and then you start feeling hungry, right? Like 4 घंटे के बाद में तो आपको भूख लगेगी, but you are so much into that मतलब game, उस खेल में आप इतना इन्वॉल्व हो कि you don't want to go home and have something and come back. You don't want to waste that half an hour. Okay, what is body's mechanism? उस समय बॉडी का फीडबैक क्या होना चाहिए? will you faint because now you are hungry, you're not eating anything, तो आप चक्कर आके गिर जाओगे? No, what is going to happen is body will try to get energy from other source, right? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगी या फिर फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी, एंड इस तरीके से योर बॉडी विल बी प्रोवाइडेड, योर ब्रेन विल बी प्रोवाइडेड विद द ग्लूकोज. डज इट हैपन और डज इट नॉट हैपन? टेल मी. इट हैपेंस यूजुअली विद द किड्स. बच्चों को बच्चों में खेलने के लिए भेज दो, दे विल नॉट रिमेंबर टू कम होम इवन इफ दे आर हंग्री, राइट? देखो वो खेलते जा रहे हैं विद द सेम एनर्जी टिल द एंड, है ना? सो द बॉडी इज यूटिलाइजिंग either fats or glycogen to yield energy, and फिर वो एनर्जी बॉडी में यूटिलाइज हो रही है. सेम थिंग हैपेंस विद दिस डायबिटिक पेशेंट. व्हाट इज हैपनिंग? आफ्टर 4 o'clock उसका डाइजेशन 2 घंटे में खत्म हो जाता है. नाउ शी इज स्टॉप्ड गेटिंग ग्लूकोज आफ्टर 9 PM. 9 PM के बाद में उसको ग्लूकोज मिलना बंद हो जाता है. why is she getting sleepless nights is not because of stress या बाकी के फैक्टर्स, ये वो भी हो सकता है, but the primary reason is because she is feeling hungry. तो अगर किसी को भूख लगी है तो that person will not be able to sleep properly. If the person is not able to sleep, body का detoxification mechanism काम नहीं करेगा. That is one thing. काम नहीं ही, it will not work. 80% it will not work. Okay, that is one thing. And body अगर starve हो रही है तो brain को ग्लूकोज पहुंचाने के लिए it will start burning fats, या फिर it will derive its energy from the glycogen stored into liver. जब फैट्स ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे फैट्स ब्रेकडाउन हो रहे हैं. शी इज गेटिंग some amount of glucose. Okay, यूजुअली आपने अगर सुना होगा डॉन्स फिनोमेनन या फिर रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, that starts between 3 to 6 AM in morning. Okay, so what is that? It is like the body, it is deriving glucose from a non-carbohydrate source, that is maximum times it is fats.
So breakdown of fats is going to yield lot of energy, lot of glucose. See, fats breakdown होके immediately fatty acids बन जाएंगे, energy मिलेगी. That is one process. Another process is fats breakdown होके glucose में convert होंगे and then energy ATP मिल जाएगा. That is another process. Because why glucose? Why there are two mechanisms? Because हमारे muscles जो है fats को the fatty acids can be utilized as a source of energy by our muscles, but it cannot be utilized as a source of energy by our brain. Okay, it cannot be used as a source of energy by our brain. So in order to keep our brain active and to supply the glucose to brain, some fats will get converted into glucose. Okay, now body does not know how much fats to be broken. There is no mechanism in body, no hormonal regulation which will decide कि कितने fats breakdown होने चाहिए. Okay, and this is how there is lot of breakdown of fats, and there is pool of glucose coming into the blood, and this is how her blood sugar levels early morning spike every day. Okay, every day. तो उसका fasting blood sugar level ज्यादा ही रह रहा है in spite of taking diabetes medicines, in spite of doing a number of things, because body का ये physiological mechanism है. This is a protective mechanism so that person does not land up into hypoglycemia. अगर नींद में hypoglycemia patient को हुआ तो patient is not going to wake up. Okay, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सोया है या he is becoming unconscious. So this is, in a way, it is a protective mechanism. But if it is happening in excess, अगर ये ज्यादा हो रहा है, तो that can land up into literally a disaster. ठीक है, क्योंकि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स उसके 200 से आगे रह रहे हैं तो एवरी डे देयर वुड बी सम इंजुरी टू हर इंटरनल ऑर्गन्स, जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज में हमने सीखा है. So this is how the regulation. So what change I made in her plan is, even if she is eating, I insisted her to have proper meal at 4 o'clock. They had asked her to not even consume 700 or 800 calories in evening. So I asked her if she is wanting to have her dinner at 4 to 5 p.m. She will have proper meal, right, with the complex carbohydrates, protein जो हमने diabetes में discuss किया. She will eat that meal, and रात को सोते समय she will have something which is of complex carbohydrate and which will sustain her for a longer period of time. And this way she started sleeping properly. उसके बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो मेटाबोलाइज होना अभी शुरू हो गया. She is got a more fairer skin than before. Okay, उसके नीचे बहुत ज्यादा आइस, उनके आइज के अराउंड बहुत ज्यादा ब्लैक सर्कल्स थे, वो इम्प्रूव हो गया. She is feeling more energetic and more happy. Okay, so this is the quality of life that she is getting now. And बहुत minor change. This is just a minor change. मैंने बाकी का मॉर्निंग से लेकर शाम तक उसके कोई डाइट को मैंने टच नहीं किया है. But as far as what I wanted to tell you is that डायबिटीज अभी आप लोग सीख रहे हो, राइट, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अभी डायबिटीज आप सीख रहे हो. सो व्हाट शुड बी योर इंटेंशन, बिकॉज आई वांट यू टू थिंक ऑन द पेशेंट, about the patient who is sitting in front of you, what are the parameters, read the lab reports, clinically correlated, and then accordingly plan. Okay, this is a necessity of planning a proper. So that is why correct diet plan is necessary, because if you are making a calorie deficit plan and excluding all these मतलब ये सारी चीजें सोचना आप नहीं सोच रहे हो, so there the person maybe will come out of one disaster and land up into another. Okay, so all metabolic disorders, ठीक है, बहुत ज्यादा metabolic disorders जो है they are because of nutritional deficiencies. Maximum 90% are because of nutritional deficiencies. Okay, genetic है, hormonal imbalance है, toxins है, this all I agree. But in order to happen those hormonal imbalances, in order to मतलब ये होने के लिए there is something related to their eating pattern. So that must be corrected. Okay, so that is why a correct diet plan is must be planned. Okay, now what does a correct diet plan mean? Okay, correct diet plan क्या, इसका मतलब क्या है? The correct diet plan does not insist on restricting on too many carbs. मतलब आपने डाइट प्लान बनाना है और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट के आप रिस्ट्रिक्ट करें. यू कैन,
100% you can in people who are non-diabetic, who does not have insulin resistance, does not have, as in borderline insulin resistance is accepted, but वो insulin resistance इतना है कि patient is just eating on have lot of cravings. ठीक है, जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा उन लोगों में क्रेविंग्स भी बहुत ज्यादा रहेगी. सो आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड डाइट उन्हीं लोगों को प्लान कर सकते हो who are able to follow that particular pattern, because even if you are restricting on carbohydrates, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो एंड यू आर गिविंग अ हाई प्रोटीन डाइट अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स दिए, प्रोटीन्स दिया, बट यू आर नॉट including any of the carbs in their meals, what is going to happen is, even if they are taking, following your diet plan, उनका जो craving है वो नहीं जाने वाला है. So these people who are having insulin resistance, they usually crave for salt and sugar. ये दोनों चीजों का cravings उनको बहुत रहता है. Salt क्यों? They will feel happy if they are having something of either fats or salt, like कुछ चूड़ा है या ऐसे चटर पटर जो फूड्स रहते हैं ना, वो खाने के बाद में दे विल फील हैप्पी. ठीक है, दिस इज मतलब कंट्रीब्यूशन इनका फैट्स का है, सॉल्ट का है. एंड ऑन द अदर हैंड, द स्वीट्स का क्रेविंग, कि खाना कितना भी खाओ उनको स्वीट्स का क्रेविंग हो रहा है, बिकॉज बॉडी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डिमांडिंग दैट फूड, वो कार्बोहाइड्रेट्स को डिमांड कर रहे हैं इन अ सिंपल फॉर्म, इसीलिए दोस क्रेविंग्स आर देयर. So rather than doing that, the balanced diet plan will also include complex carbohydrates. No doubt you will restrict on simple carbs like jaggery है या फिर even free sugar है. You definitely do that. There is no question about it. But some meals, कि जिसमें बहुत मतलब सिर्फ प्रोटीन है and vegetables and fruits है, ठीक है, फ्रूट्स तो फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स देंगे तो उनके क्रेविंग्स कम हो जाएंगे. बट इफ यू आर इंसिस्टिंग ओनली ऑन वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स, जिन लोगों में बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है उन लोगों में ये क्रेविंग्स हो सकते हैं फॉर एटलीस्ट फ्यू डेज. इन ऑर्डर टू बैलेंस दोज क्रेविंग्स, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 1 month, वो क्रेविंग्स को बैलेंस करने के लिए यू नीड टू प्लान सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फिर जैसे आदत हो जाएगी उनकी, देन यू कैन स्विच ऑन हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई फाइबर डाइट, जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड चिकन, रॉ वेजिटेबल्स एंड एग्स, that way you can plan. Okay, so that is why a correct diet plan will include carbohydrates in people who are needing them, and also including certain fat sources which are healthy, because fats are also responsible for decreasing the cravings. ठीक है, आपके पास कोई ओबेसिटी वाला पेशेंट आएगा तो you should be including nuts and oil seeds in their plan, because that will decrease their cravings, and this is how they will get into a correct lifestyle. ठीक है, मतलब डाइट प्लान देके किसी को फोर्सिबली कराना और वो मन से, अपने मन से कर रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. ओके, आप जब 6 months का प्रोग्राम उनको देते हो, ठीक है, द पर्सन इज डूइंग इट विद एन विजन कि 6 months में मुझे ये हो जाएगा एंड देन आई विल बी ऑल रिलैक्स. लेकिन 6 month के बाद में वो मे बी आपने 10 किलो वजन उनका कम कर भी दिया, 10-15 kgs वजन उनका कम कर भी दिया. 6 months के बाद में पेशेंट विल अगेन जंप ऑन टू ईटिंग अनहेल्दी फूड्स, और वो फिर इतना खाएगा ना कि दे विल अगेन गेन व्हाटएवर हैज बीन लॉस्ट थ्रू 6 months in just 2 months. Okay, so this should not happen. That is why a correct diet plan should be given, including उसमें ये चीज होना चाहिए कि उसको क्या जरूरत है बॉडी को. इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हम पेशेंट की क्रेविंग से, उनके अपीयरेंस से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितने लेवल का इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको हो सकता है. सो दो दिस इज नॉट करेक्ट, आई मीन इंसुलिन कितना है ब्लड में वो भी कैलकुलेट किया जाता है, या फिर ब्लड रिपोर्ट हम कराते हैं, दैट कैन ऑल्सो असेस, बट दैट इज अ कॉस्टली टेस्ट एंड मेनी पीपल डोंट वांट टू डू इट. People who can get it done, then it is good for us. ठीक है, लेकिन हम लोग वैसे भी असेस कर सकते हैं, सो उसके लिए उनको इतना कॉस्ट में डालने की जरूरत नहीं है. सो दोस पैरामीटर्स ऑल्सो यू नीड टू थिंक अपॉन. ऑल्सो इंक्लूजन ऑफ फ्रूट्स. अभी इस प्लेट में व्हाट इज रॉन्ग, यू टेल मी. Somebody, just one of you unmute yourself, and what is wrong in this plate? Purposefully I have put this plate here.
What is wrong in this plate? You tell me. Yes. Bread and wheat. Bread and corn. नहीं, चलो ये ब्राउन ब्रेड है. Okay. फिर क्या गलत है? मेजरली जो गलत है ना वो मुझे बताओ. वेरी वेरी सिंपल प्लेट, दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है ना? मतलब सारे फूड, सारे अच्छे फूड्स वी हैव इंक्लूडेड. वी हैव इंक्लूडेड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट सोर्सेज नहीं है इसमें. सॉरी, फैट, हेल्दी फैट सोर्सेज नहीं है. हेल्दी फैट सोर्स नहीं है. ओके, व्हाट एल्स इज विटामिन मिनरल बहुत ज्यादा है मैम मेरे ख्याल से. विटामिन मिनरल ज्यादा होने दो, उसका कुछ टेंशन नहीं है. कार्ब्स ज्यादा है मैम. कार्ब्स का ही मेजर पोर्शन है, प्रोटीन कम है. या फाइबर. bread and grapes. मैम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं Now है. wait. Grapes and bread. चलो ब्रेड को छोड़ो, इस प्लेट में अगर चपाती होती या फिर कोई और सीरियल होता, ठीक है. ये नाउ दिस ऐसे मैंने ये चिपकाया था. सो कंसिडर दिस कि यहाँ पे ब्रेड की जगह कुछ चपाती है या फिर अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है. द मोस्ट रॉन्ग थिंग इन दिस प्लेट इज इंक्लूजन इन Corn. ठीक है. inclusion of fruits in meal. You should not include fruits into your plate. जब आप खाना खा रहे हो तब आपने fruits plate में include नहीं करना चाहिए. You should not drink any kind of juices. You should not take any kind of recipe which is containing fruits. तो कस्टर्ड एप्पल, ये क्या कस्टर्ड एप्पल नहीं, क्या बोलते हैं, कस्टर्ड जो बनाया जाता है, फ्रूट कस्टर्ड, है ना? तो उसमें भी फ्रूट्स एडेड होते हैं. कुछ ऐसे people even take shakes like mango shake भी लिया जाता है जब मैंगो का सीजन रहता है. तो it is the most wrong thing we are doing in that particular meal. क्यों wrong thing कर रहे हैं? Because fruits they are easily digested, ठीक है, and they contain lot of vitamins and minerals. When we are eating cereals, when we are eating pulses, okay, or we are eating vegetables, तो इन सारे फूड्स में कुछ हद तक फाइटेट्स होते हैं which inhibit absorption of many minerals. Okay, that is first thing that happens कि absorption of minerals from fruits. तो आपको लगेगा कि आपने फ्रूट खाया है, so your body is getting vitamins and minerals, but it is not that. Only 20% of vitamins and minerals your body will get if you are including fruits in your meal. This is just one example, that is food combination. तो ये जो है ना, ये हमें सीखना और ये जानना जरूरी है कि ये क्यों नहीं देना है, राइट? अभी फ्रूट्स बहुत बार मिल्क के साथ में मिल्क शेक्स के फॉर्म में दिए जाते हैं. अवॉइड दैट, बिकॉज मेनी फ्रूट्स दे विल कंटेन सर्टेन एसिड्स, दे विल कंटेन विटामिन सी विच कैन कर्डल मिल्क, नॉट विजिबल टू योर आईज, बट इंटरनली वो प्रोसेस हो गई है, विच कैन कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज. इवन बच्चों को देते समय वेरी वेरी स्वीट एंड पल्पी फ्रूट्स अगर रहेंगे तो उसमें फिर भी मिल्क जा सकता है, बट आइडियली इट शुड बी अवॉइडेड. फ्रूट्स शुड बी कंज्यूम्ड ऑन देयर ओन. मतलब एक मील आपका ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आप फ्रूट्स खा रहे हो, ठीक है. देन जो कंपटीशन होता है ना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का, वो नहीं होता है. योर ऑल इंटेस्टाइनल बेड is open to absorb the nutrients. Second thing is when you are eating fruits along with the other meal के साथ में अगर fruits खा रहे हो, तो इस प्रोसेस में जो आपके intestines के ऊपर ऑयली कोटिंग चढ़ जाता है, that becomes a mechanical barrier for absorption of nutrients. ठीक है, वो मैकेनिकल बैरियर हो जाता है. ऑयल जब रहता है ना, तो oil does not allow these vitamins and minerals to pass to the cells कि जहां से उनका absorption हो जाए. So absorptive capacity of your intestines is that way minimal if you are eating fruits along with the meals. इसीलिए आप जब खाना कोई भी मील प्रिपेयर बना रहे हो, so ideally जो ऑयल हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इट इज नॉट ओनली विद द पर्पस कि ऑयल से आपके क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स, एडिपोसिटी. दिस इज ऑल अ प्राइमरी थिंग. ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है आजकल कि ऑयली फूड्स खाने से ओबेसिटी हो जाती है ना.
The second thing that we all usually ignore is the coating that builds up into your intestine, which does not allow the nutrient absorption, जिसकी वजह से एडिपोसिटी जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ती है, पेशेंट का वेट लॉस होने में मदद नहीं होती है. इसीलिए as far as possible, if there are 2 meals, okay, 2 meals with a good protein source, without fats and good vitamins and minerals, this will actually aid in establishing a proper health. Okay, you start on your own. See, I'm not telling you to practice on your clients immediately. You start on your own. एक प्रोटीन सोर्स है विच इज मे बी इन अ स्कीम्ड फॉर्म, कि जिसमें बहुत कम ऑयल या फिर कोई ऑयल एडेड नहीं है, एंड उसके साथ में you eat either partially cooked vegetables, saute fried, or you eat raw vegetables, and you see the difference in 15 days what happens to you. Okay, the first thing that will happen is your all intestinal system, it will be very very happy and healthy, and सारा microbacterial flora आपका normal रहेगा, आपका digestion improve हो जाएगा, and lot of positive things will happen. Your skin texture will change, and your metabolisms, they will run smoothly because it does not have toxins to metabolize, right? जो कुछ आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, and let us utilize those nutrients in order to form energy, in order to keep you healthy, in order to prevent the aging process. Okay, so this is the need of planning a correct diet plan. This is why, okay, you should be planning a correct diet plan. Okay, what is the difference between diet and nutrition? क्या टाइम हुआ है? Okay, we have 10 more minutes. ठीक है. Now, what is the difference between diet and nutrition? A calorie counted diet is called as a you can say you are on dieting. Is called as a diet. And what is nutrition? Along with those calories, you are inculcating many other nutrients also. Let's say एक example देती हूँ मैं, कि आपने भेल बना ली, ठीक है, स्प्राउट्स भेल. दिस इज वेरी कॉमन व्हेन वी आर मेकिंग अ डाइट प्लान. बहुत सारे लोग, बहुत सारे डाइटिशियंस आपको बताते हैं स्प्राउट्स की भेल. नाउ उस स्प्राउट्स की भेल, नाउ दिस भेल, इट विल कंटेन स्प्राउट्स, इट विल कंटेन सर्टेन नट्स. लेट्स से आपने पीनट्स डाला, या फिर यू हैव एडेड almonds and walnut, or whatever you want to add in the form of nuts. You are adding onion or tomato to it. Okay, a small amount of coriander you put onto it, and it tastes really good, right? उस पे चाट मसाला डाल दिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका. Apart from this, what you can do it to make it enhance its nutritional value. A small thing, even if you squeeze 1/4 lemon onto that bale, that is the most nutritious thing that you can have, because it is containing ascorbic acid, which is going to cleanse your gastrointestinal system. allow the raw form में जो आप vitamins and minerals ले रहे हो, उसका absorption ये enhance करेंगे, right? And it will also detox your body when it is getting the vitamin C. It will detox your body when it is getting into the blood. So small thing, you are adding a lemon to it, or you are adding tamarind chutney to it. Tamarind chutney is also useful because it is also containing lot of vitamin C, right? So इस तरीके से आपको वो modify करना है. If you are adding avocado on top of it, it will be again the best thing, provided it should be in a fresh form. Okay, so these things do matter when you are planning a meal, and this meal, it will be not planned not with the perspective of only dietary aspect, but also you are considering the nutritional aspect. Nutrition क्या है इसमें? विटामिन सी दिया है, सिर्फ यही न्यूट्रिशन नहीं है, but this ascorbic acid and vitamin C is helping the other nutrients to get absorbed properly and get utilized properly. Okay, so this is the difference between a diet when you are planning it with the perspective of calories and when you are planning it with the perspective of nutrition. Understood, everyone? Okay. Now, another thing very, very important I want to discuss today is therapeutic plans need clinical correlation. Now, what is a therapeutic plan? Okay, ये मैंने डिप्लोमा के बैचेस में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है. ये थेरेपेटिक मतलब क्या, कि किसी कोई डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए क्या हम लोग फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन अजम्पशन है ये कि डायबिटीज अगर किसी को है
तो इफ दैट पर्सन टेक्स करेला जूस, ओके, या फिर नीम के पत्तों का जूस, नीम एज इन दूसरा वाला नीम, उसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बताती हूँ बाद में, अगर उसके पत्तों का जूस लिया जाता है तो देन उसका डायबिटीज कम होने में हेल्प होती है. देन मोरिंगा लीव्स इफ दैट आर टेकन इन अ रॉ फॉर्म, देन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो है वो करेक्ट होने में हेल्प होती है. Then papaya, if the patient is suffering from PCOD or irregular periods, papaya is going to help in getting those periods, okay, on time. So these are the therapeutic foods, right? Now what does therapeutic plan mean? Therapeutic plan मतलब कि कोई डिसीज है वो और एग्रेवेट नहीं होना चाहिए एंड उस डिसीज को कम होने के लिए आपको करेक्ट डाइट प्लान देना जरूरी है. लेट्स से कि किसी को लीवर में फैट्स है, आई मीन फैटी लीवर है, वो बंदा एकदम प्रॉपरली डाइट फॉलो कर रहा है, लेकिन 2 to 3 times in a week he is having something oily or street food, वो रेगुलरली वो ले ही रहा है. नाउ दिस इज नॉट अ थेरेपेटिक प्लान, मतलब which he is following. We are not telling him to eat, but he is not following whatever we have told. So this is not the therapeutic thing, or we would say a therapeutic plan that he is following. Therapeutic means proper treatment. For example, कि आपको फीवर है, what do doctors do? आपको फीवर के मेडिसिन देंगे, कुछ पेन किलर्स देंगे, एंड along with that what do they give you? एंटासिड देंगे. क्यों एंटासिड देंगे? क्योंकि इन मेडिसिन की वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है, तो उससे आप और बीमार ना पड़ जाओ, ठीक है, या फिर आपको नौशा वोमिटिंग ना हो, इसीलिए एंटासिड भी दी जाती है, सो दैट फंक्शन ऑफ दोस टैबलेट्स हैपन प्रॉपर्ली, ठीक है. तो उसी तरीके से थेरेपेटिक डाइट प्लान का भी रोल होता है इन मेंटेनिंग योर हेल्थ टू ऑप्टिमम. एंड फॉर दिस यू नीड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द लैब रिपोर्ट रीडिंग्स. लैब रिपोर्ट रीडिंग मतलब कि अभी कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट है, आपने थमा दिया पेशेंट को, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल रेंज है एंड ये आपका इतना है एंड हो गया. दैट विल नॉट हेल्प. व्हाट इज गोइंग टू हेल्प इज ये क्यों बढ़ा है एंड आपको इसीलिए ये फूड्स इंक्लूड अपने डाइट में करना क्यों जरूरी है, ये आपको बताना जरूरी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपने इमली की चटनी क्यों ऐड की है, लेमन क्यों लेने के लिए बोला है, अर्ली मॉर्निंग लेमन और वाटर तो हर एक कोई डाइटिशियन बताता है, तो बताता है मतलब उसका इफेक्ट है, उस वैसा अलग अलग क्लाइंट्स में अलग अलग उसका रोल है, इसीलिए बता रहे हैं, राइट. उस पर्सन के कंडीशन में हाउ इज लेमन वाटर गोइंग टू हेल्प दैट पेशेंट, यू नीड टू टेल दैट. Okay, so this is a therapeutic counseling and therapeutic plan making for a client. And ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं कि जिसको फॉर एग्जांपल हाइपर एसिडिटी का जब मैंने टॉपिक लिया था तब मैंने आपको बताया था कि हाइपर एसिडिटी क्यों होती है, क्या उसके रीजंस होते हैं, व्हाट इज द पैथोलॉजी, ये सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है. In short, just in 5 minutes, you need to make person understand. So when he takes that, he will take it as a medicine, right? Let food be thy medicine. क्यों ऐसे बोला जाता है? Because food को मेडिसिन की तरह लिया जाए तो उसका मेडिसिन की तरह इफेक्ट बॉडी पे 100% होगा. Okay? The same foods, Ayurvedic practitioners, Ayurvedic doctors, they are including into their अलग अलग जो डिफरेंट मेडिसिन कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं उसमें वो ऐड करते हैं. इट इज अ प्लांट ओनली, राइट, इट इज अ फूड सोर्स ओनली विच इज बीन एडेड इन ऑर्डर टू गेट दैट हीलिंग. सो जब वो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, वी आर टेकिंग इट एज अ मेडिसिन, सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग अ गुड इफेक्ट, बिकॉज वी नो कि वो लेने के बाद में वो क्यों इतना बताते हैं कि हाँ सार फूड्स नहीं खाने हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, खाने से पहले इतनी देर खाना है. So many restrictions they do tell us, right? These restrictions are because whatever food they are giving in the form of medicine, that should act properly on their body. That should be the medicine. That should act as a medicine. इसीलिए ये बाकी के टॉक्सिन्स नहीं लेने हैं. Okay? So that is how we need to be sure कि जो हम लोग प्लान दे रहे हैं उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ऐसी चीजें बतानी है उनको with why, as to why you need to take it or why you need to avoid it. Okay, and that is why clinical correlation करके patients को ये बताना जरूरी है, right? Your goals as a nutritionist. See, as a nutritionist, you should
be able to do what things to the patient. First is assess that patient's clinical condition and assess that patient's health. वो आपको assess करना जरूरी है. There's psychology. ठीक है, वो सिर्फ आ रहा है टाइम पास करके कि लोगों ने घर वाले लोगों ने बोला है कि वेट लॉस करा ले, डाइट प्लान ले ले, इनका अच्छा रिजल्ट है और वो जा रहा है. That will not help you retain your clients. Okay, so your goal as a nutritionist is not only of making a diet plan, but considering all these factors and preparing a proper therapeutic plan to the patient so that वो आपके diet plan से benefit उनको उतने level तक मिले. And this is a step by step thing that सडन थिंग, मतलब दिया डाइट प्लान 1 महीने में 10 किलो कम हो गया. नो यूज ऑफ सच डाइट प्लान्स, बिलीव मी. ठीक है, क्योंकि जितना तेजी से वो ड्रॉप हुआ है ना, उतनी तेजी से वो बढ़ने भी वाला है. एंड रिमेंबर, पेशेंट कैन नॉट sustain on to your given diet plan which loses 10 kgs in 1 month for a lifetime. You have to include carbohydrates, you will have to include certain foods which the patient craves, which the person likes. तो वो मिलने के बाद में ना मेटाबॉलिज्म वापस से रिवर्स हो जाता है. सो रिवर्सिंग मेटाबॉलिज्म मतलब एक्चुअली taking care of all the perspective with diet and nutrition, their psychological health, their physical activity, as well as their regular follow-ups. ठीक है, रेगुलर फॉलोअप कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है in order to achieve a big goal. Okay, my perspective and mystery behind making a food plate, okay, that I will tell you today. So what is my perspective is always try and plan a balanced diet plan कि जिससे ना उस बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ डाइट फॉलो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, मतलब मतलब ऐसी चीजें कर रहा हूँ कि जो मुझे लाइफ में कभी करनी ही नहीं थी, या ऐसी चीजें कर रहा हूँ कि जो मैं लाइफ में इतने ज्यादा दिनों तक कर नहीं सकता हूँ. ओके, अनरियलिस्टिक डाइट प्लान बनाना भी बहुत ज्यादा गलत है. इफ यू आर प्लानिंग एवोकाडोस टू अ पर्सन who cannot afford it to take even once a week, ठीक है, अगर ऐसे लोगों के लिए आप एवोकाडोस एंड चेरीज आप अगर प्लान करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू फॉलो योर डाइट प्लान, राइट. फॉर अ पर्सन हु इज लाइक मतलब काम करेगा तो वो कमाएगा, उसके लिए 12 अंडे हम लोग प्लान करते हैं. हाउ दैट पेशेंट इज गोइंग टू कोप अप विद द न्यूट्रिशनल नीड्स कि जितना वो कमाएगा उतना वो एक्सपेंड करने वाला है. सो माय पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डाइट प्लान फॉर अ पर्सन इज, हम लोग जो देंगे, हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे वो पेशेंट का उसी तरीके से करेंगे कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. बट जब हम डाइट प्लान बनाएंगे, वी ऑल्सो हैव टू सी द पॉकेट साइज ऑफ दैट पर्सन एंड देन हमें डाइट प्लान बनाना जरूरी है. तभी वो पर्सन जो है डाइट अच्छी तरीके से प्रॉपरली वो फॉलो कर सकता है. ओके, नाउ दिस फूड प्लेट पर्पसफुली आई हैव शोन दिस फूड प्लेट फॉर अ पर्पस, बिकॉज even if you are including, see, this is all very healthy. अगर ये चीज if the person is having into their meals in divided doses, like divided this thing in 2 meal, like 2 meals में ये खा लिया, the person is going to get good amount of fats, good amount of carbs and good amount of proteins, right. लेकिन do you think कि इस तरीके का खाना वो बंदा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये खा सकता है? So what is our staple food is basically, we are in India, the staple food is cereals. We are like cereals ही हम लोग ज्यादा हमारे डाइट में इंक्लूजन बहुत है. मतलब आप कोई भी पेशेंट का डाइट हिस्ट्री अगर लोगे ना तो उनके डाइट में दे विल स्टार्ट विद चपाती, राइट, दे विल स्टार्ट विद भाकरी, सो या फिर दे विल स्टार्ट विद राइस ऑल्सो. लाइक इन सम फैमिलीज ओनली राइस इज कुक्ड, इफ यू सी साउथ इंडियन फैमिलीज. ओके, सो so if that is their staple food, they will not be very happy with this diet, even if it is a gold, right. So we have to include these foods in the quantities, in the proportions that the person can take every day. Along with that, you have to plan some cereal base so that their जो मन की जो ये होती है, इच्छा जो होती है खाने से, and that satiety feeling they will get out of that food source only. ठीक है, ऐसा डाइट प्लान फॉलो करके आई हैव सीन पीपल लूजिंग वेट, कमिंग बैक टू मी अगेन विद अ गेन्ड वेट एंड गिव मी अ डाइट प्लान विच इज होम कुक्ड.
या फिर अफोर्डेबल डाइट प्लान आप मुझे दे दो, ऐसे बेचारे लोग बोलते हैं. So started from beginning only, they should be happy and they should feel that satiety and जो contempt feeling है ना वो उनको आना चाहिए. That is my perspective of planning a meal. Okay, so if you want to become a successful nutritionist, okay, these things I would insist you to include in your into your this thing, into your diet plans, into your, specifically I'm telling to those people who are already enrolled into diploma course. So उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप मील प्लान अभी आगे से बनाओगे, ठीक है, ओबेसिटी के तो प्लान्स आपने बना लिए, दे आर रियली गुड एंड टू माय एक्सपेक्टेशन. लेकिन जो बाकी के प्लान्स आप बनाओगे, यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव, you are going to think about the clinical condition that I have mentioned in the diet plan. Okay, and this way you will be sending me the आगे के diet plans. And see, I had promised you कि आप जब ये कोर्स एंड करोगे तो आप एक प्रॉपरली डाइट प्लान हर एक पर्सन को, वर्ल्ड में कोई भी पर्सन आके बैठेगा आपके सामने ना, यू विल बी एबल टू प्लान अ डाइट फॉर हिम. ओके, सो इस तरीके से आप ट्रेन हो जाओगे बाय द एंड ऑफ द कोर्स. But this was a step-by-step method that I wanted to teach you. Now you are perfect with your calculations. जितने लोगों ने 10 diet plans बनाए हैं, I can assure you कि यही चीज अभी आपको न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से भी अप्लाई करनी है. Okay, you got it, everyone? Let me see. Yes, कौन ma'am. है? Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask you some question. Yes, please. Megha. Okay, so thank you very much for such a wonderful session. Yes. I just, can you hear me? Because I'm in the office Yeah, right yeah, perfectly, you're audible. Yes. now. Yeah. So I just want to know, people are nowadays using this CGM machine, continuous glucose monitoring. Okay. So does it help? Does it really help to understand if even if the person is not diabetic, but you know, coming to the border line I'll tell you. and yeah. So is it really helpful, yeah, for monitoring the carbohydrates? Huh. You know why health industry is earning so much? Why do you think health industry is earning so much? Because Because- people need shortcuts. People are Because they create a need, okay? They create that urgency and they are there to sell their product, right? Okay. Yeah. Now you tell me, if you have a hypertension, there are machine or the Holter monitoring, if you might have heard. ठीक है? Yeah. Holter monitoring का एक मशीन होता है which is being tied to your like पेट पे, belly पे वो टाई किया जाता है and उसका एक जो पार्ट है वो हाथ पे रहता है. Okay, where we usually measure our BP. So उस Holter monitoring में the pulse is being recorded and the BP is being recorded. ठीक है? Similarly with the glucose monitoring. ओके, ग्लूकोज का भी इसी तरीके से 24 आवर्स ग्लूकोज आपका मेजर होगा, लाइक आफ्टर एवरी लेट्स से 15 मिनट्स, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, व्हाटएवर इज द सेटिंग. ठीक है, उस तरीके से आपका ग्लूकोज जो है ब्लड का वो मेजर होता रहेगा. उसी तरीके से बीपी. नाउ यू जस्ट टेल मी कि अगर आपने खाना खाया, ओके, एंड द पर्सन इज अ बॉर्डरलाइन डायबिटिक, ओके, वो खाने के बाद में मे बी उसका शुगर बढ़ गया, ओके, वो देखने के बाद में ना नेक्स्ट डे उसकी शुगर ज्यादा बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड इनटू हिज बॉडी. ओके, इट इज नॉट वर्थ डूइंग इट. पीपल शुड नॉट डू इट एंड आई वुड इंसिस्ट, इफ देयर इज एनी डॉक्टर डूइंग इट हियर, डू नॉट डू इट फॉर द पर्सन's sake, because it is very difficult to accept that the person is diabetic, or I am diabetic, or I am an hypertensive patient. Okay, and those stress levels that are getting developed in their mind, मतलब वो stress develop होता जाएगा ना, मेरी शुगर बढ़ रही है, always checking, always doing this, उसकी वजह से पेशेंट को जो नहीं थी बीमारी ना वो हो सकती है. Okay, so ideally it should not be recommended and it is not at all helpful to the person. Yes, I agree, it is 100% helpful to a person who is into ICU, who himself doesn't know कि अभी क्या हो रहा है उसके इसमें, ठीक है, उसके रीडिंग्स में.
दिस इज फॉर द डॉक्टर्स टू एनालाइज कि हाँ ये इतने फ्लक्चुएशंस है, ये है, दे शुड गिव दिस एंड दैट रेमेडीज और दिस एंड दैट मेडिसिन इन ऑर्डर टू गेट इट डाउन. नॉट फॉर अ हेल्दी पर्सन. What should be the goal of a healthy person? See, जब आप पेशेंट को डाइट प्लान्स बताओगे या फिर इवन पेशेंट को गाइड कर रहे हो, ठीक है, डिप्लोमा के सारे स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू दिस. जब आप पेशेंट के लिए डाइट प्लान दे रहे हो, ठीक है, उनको हर बार फूड्स के बारे में सोचने के लिए इंसिस्ट मत करो, बिकॉज देयर लाइफ विल बी directed only towards thinking about food and doing getting their optimum health. We should not be doing that. That is a part and parcel of your life. It is not life at all, right? मतलब वो life ही है, ऐसा नहीं है. They will leave all their work and do only these things. वैसा नहीं करना है, ठीक है. एंड जितना कोई भी बंदा उसके हेल्थ के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचेगा, उतना वो ज्यादा प्रॉब्लम्स में लैंड अप होगा. ओके, Actually, what I wanted to ask, hello, ma'am. Let me Yes, continue this completely. Yeah. So what I need to know. So one of my friend has used her husband actually. So there they were understanding whatever, if suppose any particular millets or any particular cereals, if they are eating, if the glucose is increasing or decreasing or remaining stable, just to analyze that, so that they can have such type of food. So that is for that also we shouldn't use that. see, whatever is there, I would insist that if the patient is not a dietitian, they should not do it, because this is using half knowledge. They are not utilizing proper knowledge towards it. They should take help of some other dietitian or a nutritionist who is having a perfect knowledge about it and who can guide them properly, rather than continuously being into a thought कि हाँ मेरा अभी बढ़ा है तो मैंने कितना मिलेट्स लेना चाहिए. सो वही मैं बोल रही हूँ कि ये जो है ना, वो आपने इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए. अगर कोई कर रहा है तो गाइड देम टुवर्ड्स इट. ओके, so it is obviously their choice. We cannot insist upon that. One second, Megha, I will ask someone else because many people have raised their hands. Yeah. Yes. Yes, Pooja, you wanted to know about CRP, right? Hello, Yes, ma'am. Pooja. हाँ, CRP. So basically एक टेस्ट होती है CRP. Okay, that test, it is an inflammatory marker. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर मतलब कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी स्टेट है. अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा है, सो देर इज सीवियर इन्फ्लेमेशन. इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन आर डिफरेंट. इन्फेक्शन मतलब कि कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है. इन दैट सिनेरियो ऑल्सो सीआरपी कैन बी रेज्ड. लेकिन इन्फ्लेमेशन इज लेट्स से अ प्रोसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अ प्रोसेस ऑफ आर्थराइटिस, कि जहां पे इन्फेक्शन कोई नहीं है बट बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है, राइट. सो देयर वहां पे उनके ब्लड रिपोर्ट्स में सीआरपी जो है वो बढ़ता है. ओके, तो लेट्स से कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको बहुत सीवियर कंडीशंस होती है, उनका भी सीआरपी बढ़ा हुआ होता है. एंड ऐसे लोग हैं कि जिनका सिर्फ टूथ पेन है, ओके, तो डेंटल केरीज है, उसकी वजह से भी उनका सीआरपी बढ़ा हुआ है. ईएसआर करके एक अनदर टर्म होती है, वो भी बढ़ी हुई होती है. सो यू नीड टू इवेल्युएट कि ये किस वजह से है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई थायराइड का पेशेंट है, उनको क्रॉनिक हाइपोथायरॉइडिज्म है, बहुत 99% लोगों का सीआरपी बढ़ा नहीं रहेगा. लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस एक कंडीशन है कि जहां पे थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, तो उन कंडीशंस में सीआरपी बढ़ा हुआ रहता है. एब्डोमिनल इन्फेक्शंस जैसे पेट के इन्फेक्शन है, किसी को आईबीएस है, उनका भी सीआरपी बढ़ा हुआ रह सकता है. ठीक है, सो इंक्रीजिंग सीआरपी इज अ बहुत बड़ी टर्म. इट कैन नॉट डायग्नोज एनी डिसीज. कोई डिसीज इस टेस्ट की वजह से डायग्नोज नहीं हो सकता. ओके मैम, फैटी लिवर अगर ग्रेड 2 है तो भी सीआरपी बढ़ा रह सकता है. फैटी लिवर, यस, फैटी लिवर इज ऑल्सो एन इन्फ्लेमेटरी स्टेट. और ये मैं बोलूंगी कि फैटी लिवर नहीं रहेगा एंड पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा है, सिर्फ पेशेंट को एडिपोसिटी है, बट ग्रेड 2 ग्रेड 3 ओबेसिटी है, उनका भी सीआरपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, बिकॉज दीज आर दी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स. ओके, जैसे हमने कोरोना में देखा था कि साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया, तो उसी तरीके से ये चीज भी होती है. ओके,
So yes, I think there is someone who has raised hand. 1 second. हेलो मैम. हाँ, yes. मनदीप हाँ. मैम है क्या? हाँ, बताइए. Yes. हाँ जी मैम, अगर किसी पर्सन का पिछले 6 मंथ से, जैसे उनको पहले थायराइड था, तो उनका पिछले 6 मंथ से थायराइड नॉर्मल आ रहा है रिपोर्ट्स में. एक ही मिनट. जस्ट 1 मिनट. एक्सक्यूज मी, जस्ट फॉर 1 मिनट. 1 मिनट. हाँ, यस, बताइए. मैम, पिछले 8 ईयर से उनको थायराइड की समस्या थी एक क्लाइंट को, लेकिन पिछले 6 मंथ से 2 बार उन्होंने थायराइड टेस्ट करवाया तो उनके नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उनको कह रहा है कि आपने मेडिसिन बंद नहीं करनी है. तो क्या उनको बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी, अगर बाकी के सारे पैरामीटर्स उनके नॉर्मल है, वेट बढ़ नहीं रहा है, उनका बीपी नॉर्मल है, उनके एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, तो बंद कर दो. अगर इनको कभी सिम्टम्स दिखे कि एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं या हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्किन टेक्सचर चेंज हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, लाइक वेट इंक्रीज हो रहा है, तो देन गेट इट टेस्टेड अगेन एंड फिर वापस रिज्यूम कर सकते हैं. लेकिन अगर रिवर्स हो गया है एंड कोई रिपोर्ट में एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो मतलब अगर मेडिसिन बंद भी किए जाते हैं तो भी चलेगा. मैम, पूरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, सिर्फ उनका ESR बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम नहीं, मतलब बॉर्डर लाइन से 10 to 15 तक ज्यादा है ESR. ESR बढ़ने के बहुत बाकी के रीजंस हो सकते हैं. अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप उनको रेफर कर दो डॉक्टर को. नहीं मैम, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, बिल्कुल नॉर्मल सी रेंज से, जैसे ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं है. हाँ, लेकिन अगर एजेड पर्सन है ना, ये भी है कि आप कौन से पेशेंट को आपको डॉक्टर को एक्चुअली रेफर करना चाहिए. सारी चीजें आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सबको. ओके, उनका बिल्कुल पूरी की पूरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं. उनको पहले थायराइड था पिछले 8 ईयर से, अब 6 मंथ से 2 बार सम रीजन फॉर इंक्रीज ESR, राइट? उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं. तो उनको सिर्फ एनालिसिस करके आने के लिए बोल दो. अगर लगता है कि डॉक्टर्स ने बोला कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग और ये है, तो इट इज ओके. जो डॉक्टर्स है यहाँ पे, यू योरसेल्फ कैन एनालाइज, ठीक है? क्योंकि आपको वो अथॉरिटी है. बट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, आपको यहाँ पे ये लिमिटेशन होता है. ओके जी मैम. जी मैम. यस इमराना. मैम, क्वेरी ये था कि जैसे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के साथ में एक क्लो ऑफ गार्लिक ऐड किया है, तो उसका कंजम्पशन कैसे करना है? क्लोव ऑफ गार्लिक? जी. क्लोव ऑफ गार्लिक तो यूजुअली डायरेक्टली वी हैव टू आस्क देम टू च्यू. बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आता है, तो यू हैव टू ऐड इट टू द मील्स इन अ रॉ फॉर्म. ठीक है? तो उसका बेनिफिट, क्योंकि अगर आप तेल में डालोगे तो उसका वो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, जो एंजाइम की जो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करती हैं, उसके वैल्यूज चले जाएंगे. अच्छा, वो क्रश करके वो डिटॉक्स ड्रिंक में ऐड करके ले सकते हैं मॉर्निंग में, वो चलेगा? ले सकते हैं, यस, इफ दे आर एक्सेप्टिंग तो वो ले सकते हैं. मतलब उनको टेस्ट एक्सेप्टेबल है तो वो ले सकते हैं डेफिनेटली. ओके, थैंक यू. ठीक है. सिंपलेस्ट वे ऑफ कंज्यूमिंग गार्लिक इज, गार्लिक का टेस्ट जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मेनी पीपल डोंट लाइक इट. सो आप जैसे कोई रॉ वेजिटेबल्स का कुछ मील उनको दे रहे हो, तो उसमें आप उनको स्प्रिंकल करके आप दे सकते हो, तो उससे टेस्ट है ना उसकी थोड़ी सी हाइड हो जाती है. अगर आप वाटर में दे रहे हो ना, तो स्पेसिफिकली उसी की टेस्ट बहुत ज्यादा आएगी. तो इफ द पेशेंट इज कंफर्टेबल टू टेक इट, देन इट इज ओके. लेकिन दिस इज अनदर मेथड बाय विच यू कैन गिव. ओके, यस. हाँ, जैसे क्वेरी ये था कि मॉर्निंग में ही लेना जरूरी है या थ्रू आउट द डे आफ्टरनून में भी ले सकते हैं? मॉर्निंग में ऑन एम्प्टी स्टमक इट हैज अ बेटर इफेक्ट, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना वो मतलब यूटिलाइज हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से. ठीक है? Yes. So this was all. Now people who are interested in doing diploma or growing their careers into nutrition and dietetics field, you can approach to me.
directly by messaging me personally, okay, on the given number. तो मैं वो नंबर शेयर करती हूँ. जिन लोगों को इंटरेस्ट है, you can get in touch with me, right? Because if you are wanting to do this as a career, आप without certification तो ये नहीं कर पाओगे. There are lots of things that you should know in a correct way also, and आपके पास में वो certification भी चाहिए. जब certification होगा तो lifelong there will be no person who will say कि आप क्यों ये practice कर रहे हो. और second thing is कि आपको भी खुद को भी ये confidence रहता है. जब आपके पास certificate रहेगा तो आपको खुद को ये confidence रहेगा कि आप ये science wholeheartedly you can practice. And remember कि आपको knowledge जो है, knowledge in an organized way मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. तब जाके ये प्रॉपरली आप कर पाओगे, क्योंकि लैब रिपोर्ट रीडिंग एंड ऑल द थिंग्स अभी यहाँ पे जो डॉक्टर्स है फॉर देम इट इज वेरी इजी, बट द पीपल हु आर नॉन मेडिको फ्रॉम द नॉन मेडिको बैकग्राउंड एंड वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. बिलीव मी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जो कोर्स में ले रही हूँ उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. जितना सिलेबस मैंने आपको डिलीवर किया है, एटलीस्ट 90% सिलेबस हर एक नॉन मेडिको पर्सन को भी समझ में आता है. उस तरीके से ये कोर्स मैंने डिलीवर मैं कर रही हूँ अभी. ओके, सो इफ यू वांट, अच्छा प्रिया, लास्ट टाइम आल्सो यू हैड आस्क्ड मी, प्लीज मैसेज मी पर्सनली, बिकॉज वो लास्ट टाइम भी मैं आपको रिप्लाई करना भूल गई. मेरे नंबर अभी ग्रुप पे मैं सेंड करूंगी, तो उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो पर्सनली. ओके, Yes, ma'am. Yeah, sure. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड, दैट इज व्हाई यू ऑल आर स्पेंडिंग योर 1 hour you all are with me throughout these sessions. Definitely. डिप्लोमा की बैच के स्टूडेंट्स दे अटेंड दिस सेशन फॉर द नॉलेज पर्पस, राइट? क्योंकि इस हर एक सेशन में मैं कुछ अलग अलग ये सेशन में कभी और कहीं 6 महीने के बाद दूंगी, तो मे बी उसमें मैं और कुछ बाकी की चीजें बोलती जाऊंगी, बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न इन दिस साइंस, राइट? So you get in touch with me. मैं आपको properly guidance देती हूँ कि how you can do this and how you will be able to do it and start learning. It is very very easy to learn. Don't think कि मैं नॉन मेडिको हूँ तो मैं ये कर पाऊँ, because we have people who are who were not into wellness and जिनको कोई medical terms पता नहीं थे, but they are doing it really in a very very better way. At least वो डाइट प्लान्स वो सब बहुत अच्छा बना रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि मैं उनको उस लेवल तक अपलिफ्ट करूंगी कि जब वो कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं. एंड क्लाइंट्स को हैंडल करना इज अगेन अनदर थिंग, ठीक है? तो ये मैं कोर्स के एंड में डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए मैं डेफिनेटली वो सेशंस में अरेंज करूंगी आपके लिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज टाइम ऑफ योर्स. वी विल बी मीटिंग इन संडे सेशन इफ पॉसिबल, नहीं तो फिर मंडे.